this happens with everyone. Mostly 90% of people follow this model of happiness. They link their happiness to some source, to some goal or outside of things. And mostly maximum लोग ये if then model follow करते हैं happiness का. Like if this will happen then they'll be happy, if they'll get this then they'll be happy, if they achieve this then they'll be happy. So this is a if then model of happiness, which is totally a flawed one. You'll never be happy by this way, or if you follow this model, you'll never get happiness. Hi guys, this is Sapti Sharma and welcome to Breathitation. And today let's talk about secret of happiness. So yeah, I was talking about if then model जो हम लोग usually सभी लोग follow करते हैं. It's like it started from our childhood, like once we achieve the result we'll get this. So वो हमारे reward होते हैं, but we attach our happiness like this. Then once we get to college, once we get this degree, then we'll be free or we'll be happy or we'll enjoy life. Or once we achieve a job, once we get a job, once we get a good car, good house, good partner, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी हैप्पीनेस लिंक कर देते हैं. एंड देन विल थिंक कि ओके हमें जब ये मिल जाएगा देन विल बी हैप्पी, देन विल बी रिलैक्स. बट गाइज या एज आई टोल्ड अर्लियर एज वेल, दिस इज़ टोटली अ फ्लॉड वन. बिकॉज just let me give you an example for this. Example से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. So just think for a moment, just go back in your past and think for a moment जहाँ पे आपने सोचा हो कि यार ये मिल जाएगा उसके बाद I'll be so happy. Just think about that moment. कुछ भी हो, even though that's a degree, that's a job, that's a life partner, that's a car, that's a house, anything. Just go back in your past and just think about that moment जिसके लिए आपने सोचा था कि आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद you'll be so happy. Just think about it. Now think about the moment once you achieve that, once you got that. How you feel. So this is if then model. So I think मुझे लगता है, I'm sure कि आपको वो happiness जो feel हुई होगी उस टाइम पे, वो उसका कुछ % अभी feel हुआ होगा. लाइक वो हैप्पीनेस रहती है मोस्ट प्रोबली 1 दिन 2 दिन, वीक मैक्स 1 महीना 6 महीने 1 साल. उसके बाद नहीं. उसके बाद you'll start looking for different source, different goal so that you'll be happy. क्योंकि आप if then model follow कर रहे हो. So जैसे ही वो अचीव हो जाएगा you'll start looking for different goal, different things, different source so that you will be happy. So अगेन इससे आप हमेशा कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढते रहोगे जिससे आपको हैप्पीनेस मिले. बट अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर आप फील करोगे वो चीज़ फिर से अचीव करने की, यू वोंट बी दैट मच हैप्पी. क्योंकि वो जो हैप्पीनेस है दैट इज़ एन एक्सटर्नल, यू हैव लिंक्ड इट विथ सम एक्सटर्नल वर्ल्ड. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते जाओगे, लाइक ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. लाइक फर्स्ट से इट्स नॉट लाइक गोल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, बट अपनी हैप्पीनेस को उससे अटैच नहीं करना चाहिए. फर्स्ट से यू आर प्लानिंग टू हैव अ गुड बिजनेस, ओके, सो डोंट लिंक योर हैप्पीनेस टू दैट. अगर आप अपने बिजनेस को अचीव करना चाहते हो, इफ योर बिजनेस इज़ योर गोल, देन वर्क टूवर्ड दैट, मेक प्लान टूवर्ड दैट, मेक स्ट्रैटेजीज टूवर्ड इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. अगर आप फेल भी हो जाते हो, यू विल लर्न समथिंग एंड अगेन स्टैंड, चेंज योर स्ट्रैटेजीज एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग. क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए, वो गोल पे पहुँचने के लिए you need to learn these things जो आपने फेल की हैं यहाँ पे. those things you should know before reaching there. that's why you fail, because कहीं ना कहीं लैक था आप में, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी. you need to learn and then start again. it's not like अगर आप फेल हो गए, you didn't work, then you stop and you just change your goal. so वर्क लाइक दिस. बिकॉज जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं लाइफ में, जो भी डार्कनेस होती है हमारी, वो हमें स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती हैं, वो हमें एक पर्सनालिटी चेंज देती हैं, वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्टोन देते हैं, और ताकि वी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन आवर लाइफ. और जब भी हम अपनी चीज़ें, अपनी गोल अचीव करेंगे, वी विल बी more stronger and a deservable person, so that we can enjoy that place, we can enjoy that goal, we can enjoy that period, or whatever we want to achieve, we can enjoy fully because we are capable now.
So this is kind of a part of happiness or a way you should be. क्योंकि जब आप enjoy करते चलोगे, अपने failure से learn करके फिर खड़े होके फिर चलने लगोगे, so you're enjoying the process. और once you reach there, आप तब तक अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करना सीख जाओगे, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे. बिकॉज इट्स नॉट लाइक अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल है सो यू शुड बी अनहैप्पी. आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, बट या लर्न फ्रॉम दैट एंड मूव ऑन. डेवस्टेटिंग चीज़ें होती हैं, बहुत हर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं. एग्री, फील योर इमोशन, accept that thing, learn from that and move forward. अगर आप ये प्रोसेस सीख जाओगे तो आप कभी भी कोई सोर्स पे डिपेंड नहीं होगे हैप्पीनेस के लिए. क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी सोर्स पे डिपेंड होते हो तो यू वोंट बी एबल टू कीप दैट हैप्पीनेस लास्ट लॉन्गर. आप फिर दूसरे सोर्स और दूसरी अटैचमेंट पे लिंक हो जाते हो टू फाइंड द हैप्पीनेस. क्योंकि वी शुड बी हैप्पी, काम, रिलैक्स. और हम जब सोर्स को ढूंढने लगते हैं तो हम और ज़्यादा एंशियस होते हैं जब हमें कुछ नहीं मिलती हैं चीज़ें. सो इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड द प्रोसेस. जो भी लाइफ में चीज़ें आ रही, एक्सेप्ट देम, वर्क विद देम, टेक इट लाइक एज अ गेम. एंड वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लाइक जस्ट अभी हमने क्या सोचा था कि लाइक पास्ट में जो भी आपने गोल ओरिएंटेड हैप्पीनेस अटैच की थी, जस्ट थिंक ऑफ दैट. आई एम 100% श्योर आपको नहीं फील हुई होगी उसी लेवल की हैप्पीनेस आज. बट या नाउ फॉर अ मोमेंट थिंक ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन, एनीथिंग, कोई माउंटेन का व्यू या सी के शोर पे आप बैठे हो, और इवन इफ यू आर सिटिंग विद समवन, द कामनेस, द पीस, द लव विच यू आर फीलिंग. ओके, एंड इवन फॉर से अ रेनबो या कोई भी स्मॉल चीज़ जो रिलैक्स होकर आप बैठे और बहुत खुश हुए उसे देख के. जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट फॉर सेकेंड. यू विल डेफिनेटली फील दैट कामनेस, दैट रिलैक्सनेस, दैट पीस अभी भी. वाई? बिकॉज आप उसको ऑल्टर करने नहीं गए. लाइक यू डिडंट थिंक लाइक यार ये पानी की आवाज़ में थोड़ा ऐसा होता तो और अच्छा होता, या फिर अगर मैं इस पर्सन के साथ हूँ तो ऐसा कुछ होता तो और अच्छा होता, या फिर इफ़ यू आर लुकिंग एट अ रेनबो लाइक यस रेनबो में 2-3 कलर और होते तो अच्छा होता. नो, राइट? आप जैसा था, जैसी प्लेस थी, जो भी हो रहा था उस टाइम पे, यू वर एन्जॉइंग दैट, यू वर इन द मोमेंट. जैसा वो था वैसा आप उसको एक्सेप्ट कर रहे थे एज इज़, whatever however that was, you were accepting that as is. So that is the secret of happiness. Things comes in your life, things goes from your life, but you should not link with them. You should be enjoying whatever however that is. Like as I told, like similarly problem के साथ भी होता है. Our life is perfect the way it is. अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं गेन कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, दैट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू अचीव दैट. वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर लर्निंग दोज थिंग्स, एंड देन वंस वी विल गेट दैट, हम तब बहुत रिलैक्स होंगे और वी विल बी केपेबल टू एन्जॉय दैट थिंग, एन्जॉय दैट प्लेस और वट एवर दैट इज़. सो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग however and whatever those things are as is. Accepting doesn't means कि अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई इशू आया तो हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है and you're not working toward it. Accepting ये नहीं होता. Accepting that means okay dude ये प्रॉब्लम है, okay now what? कुछ इमोशंस हैं, जस्ट लेट देम फ्लो. इफ़ यू वांट टू क्राई, इफ़ यू वांट टू वॉक, वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट एक्सप्रेस दोज इमोशंस एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू वर्क टूवर्ड इट. स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज to work parallel to that and cross that. And once you will learn this, that is the secret of happiness. जब आपके vision या आपके goal पे आप पहुँचोगे तो you will be like as I told saying this again, तब आप ज़्यादा उस चीज़ को, उस goal को, उस vision को enjoy कर पाओगे, because now you learn the art how you should enjoy or work with your life, not against or something. You should be working with your life. So you have started enjoying your path and journey. क्योंकि
अगेन एक और चीज़ बोलती हूँ मैं कि फर्स्ट यू आर ट्रैकिंग समवेयर एंड पहाड़ पे पहुँचने के बाद यूल सी सन है और बहुत हार्श है, नो वाटर नथिंग, सो द गोल इज़ नॉट देयर। बट या अगर आप अपने रास्ते को ही इंजॉय करते जाओगे, मस्ती करते जाओगे, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसमें खुशियाँ ढूंढते जाओगे, यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग द पाथ। तो वहाँ पहुँच के यू वोंट फील दैट रिग्रेट, ओके यूल चिल मारोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करोगे या जिसके भी साथ गए हो, एंड कम डाउन। बट इफ़ यू आर लाइक कि हम ऊपर पहुँचने के बाद विल बी हैप्पी, ये करेंगे वो करेंगे, देन probably you will be disappointed, right? So don't this is the best example, like don't attach your happiness toward any goal or third thing or outer thing. Just be happy in whatever you are, and negative thing, negative thought, downfall are not your enemy. Those are the best teacher. वो आपको हमेशा कुछ दे के जाते हैं, but yeah, you should know how to learn from that and how to learn from that thing, क्योंकि वो जो लर्निंग देते हैं वो आपको आगे लाइफ में एक डिफरेंट पर्सन बनाती है, एक सक्सेस पर्सन बनाती है, इफ़ यू लर्न फ्रॉम दैट, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ. So yeah guys, just try to enjoy your journey and enjoy your path. So that's it for now. Bye bye.